next session is all about this, what will it take to address the water crisis? And this is again, we will be talking more about different strategies, different solutions for this whole complex problems that we are talking about. For this, our moderator for this session is Ms. Avantika Singh. Avantika is, she is the Strategy and Partnership Head at Hindustan Unilever Foundation. And she is passionate development sector professional with more than 20 years of experience. So, Anantika, I'm very sorry, Anantika. Please come. Joining us in this panel is Mr. Basant Yadav, President Shahbagi Sansthan Chhattisgarh. Mr. Basant has a rich experience of working on NRM with government, CSOs, BRLF, ABF, and many other organizations, and has been working very closely on different other projects, and also water and livelihoods. So I request Mr. Basant Yadav to please come on the stage. Joining us will be Ms. Naseem Sheikh. Naseem is Associate Director of Programs, Swayam Shikshan Prayog. And Naseem Sheikh is an expert in grassroots women empowerment with over 2 decades of experience. And she has been very committed to building economic, social, and political resilience among rural women. Dr. Gopal Kumar, researcher, International Water Management Institute, has, with 18 years of the Indian Council of Agriculture Research, he served as head of the Division of Soil Science and Agronomy and principal scientist at the Indian Institute of Soil and Water Conservation. And Dr. Kumar has led more than 30 projects. So, I think, who else? 2, 3. Yes. Mr. Neerath Bhatnagar. Neerath is the founder of the Atlas of Behavior Change and senior advisor at Dahlberg Advisors. He brings over 20 years of experience in social impact, strategy consulting, and innovation for social impact. Neerath has been also working on with different partners like CSBC, BMGF, and Dahlberg, and he is leading the development of a SaaS platform that enables development and social impact sector. So I welcome all of you. Thank you. Thank you so much, and welcome to all the panelists. You all are very experienced, accomplished, and it's a very diverse panel. So welcome to the panel. Before I start questioning the panelists, I just want to set the context for this session. First of all, a huge congratulations to Pradhan and the entire Pradhan Axis Bank Foundation and the entire Samagam team for putting together this event on, climate change, managing the present and gearing up for the future. क्लाइमेट चेंज जो है, हम सुबह से इसके बारे में सुने जा रहे हैं, बहुत सेशंस हैं, बहुत लोगों ने इसके बारे में बात की है। क्लाइमेट चेंज के बहुत पहलू हैं, और उन पहलुओं में से सबसे अहम मेरे हिसाब से पहलू है वाटर का। अगर हम यूएन की बात माने तो उनका ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ वाटर प्रॉब्लम, लार्जली अ वाटर प्रॉब्लम। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो प्रॉब्लम है, कहीं पे बहुत कम बारिश हो रही है तो वो प्रॉब्लम है। और बारिश, वाटर, ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो एज अ कंट्री हमारे पास वर्ल्ड के 18% ऑफ द पॉपुलेशन रिसोर्सेज हैं एंड ओनली 4% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। एंड ऑल्सो बिकॉज हमारे कंट्री में लगभग 50% से ज़्यादा लोग आज भी एग्रीकल्चर, एलाइड सर्विसेज पर निर्भर हैं। पानी उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रिया होता है फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। सो अगर हम पानी की बात करें तो अगर हम और ये जो गैप है, जो पॉपुलेशन और रिसोर्स गैप है,
अगर हम इसको देखें तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैट इज़ मेट थ्रू ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन. अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, मैक्सिमम वाटर इज़ बीइंग एक्सट्रैक्टेड फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इरिगेशन. And that is why securing a water future becomes critical, not just to secure India's food security. I think इस panel से पहले जो panel था that was talking about, you know, regenerative agriculture, food security, but also for, you know, economic development of this country where water is a very, very critical component. मुझे इस बात का भी एहसास है कि हम आपके और टी ब्रेक के बीच में हैं, सो आई विल रिक्वेस्ट द पैनलिस्ट टू बी क्विक विद देयर आंसर्स, शार्प एंड क्विक विद देयर आंसर्स. But I want to start very quickly with my first question to Gopal ji. Gopal ji, being being a researcher, being someone who has worked with बहुत stakeholders के साथ आपने काम किया है, आपने पानी जैसे क्रिटिकल मुद्दे को बहुत डीपली समझा है. I'd like to ask you, आपके नज़रिए में पानी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? What is it? What is the challenge that we need to get behind? मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पानी पे चर्चा रखा है. अक्सर चाय पे चर्चा होते रहती है, तो मैं पानी की बात करूंगा और मैं उस संस्थान से हूं. मैं समझता हूं कि मैं बात करने में सक्षम हूं. मैं एक लाइन कोट करना चाहूँगा, शायद पीटर ड्रकर का है. आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी चीज़ का प्रबंधन करना चाहते हैं तो उसे नापना ज़रूरी है. तो मैं जो आपका प्रश्न है चैलेंज वाला, मैं कुछ फिगर के साथ आपको बताना चाहता हूँ पहले कि अगर पूरे देश में देखें तो हम लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी वर्षा से आता है. कुछ मिट्टी में होता है, कुछ ज़मीन में जाता है. 450 क्यूबिक मीटर लगभग ज़मीन में जाता है, जिसमें से 403 या 4 क्यूबिक मीटर निकालने लायक होता है, बाकी कहीं और लॉस हो जाता है. फ्लो की बात करें तो लगभग 1870 के करीब बिलियन क्यूबिक मीटर पानी फ्लो होता है, लेकिन नदियों में ये लगभग 1450 है. बाकी इधर उधर जाता है जिसे हम पकड़ नहीं सकते. तो जो हम पूरा जितना पानी पकड़ पाते हैं बड़े डैम और छोटे डैम के जरिए, वो लगभग हमारा 1450 में से शायद 260-270 क्यूबिक मीटर पानी हम पकड़ पाते हैं. तो पहला चैलेंज तो ये है कि इतना सारा, हालांकि मैं डैम कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ तो 1-2-3 बार भी भरते हैं, ये नहीं कह सकता. तो शायद 600-700 क्यूबिक मीटर प्रभावी रूप से हम उसको रोक सकते हैं अपने प्रबंधन के लिए इस क्षमता से. तो एक बड़ा गैप है अभी. तो वो तो एक सबको पता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से हम उसको पाट सकते हैं. वो एक बड़ा चैलेंज वहाँ पे है. सबसे बड़ा चैलेंज उसमें से ये है कि जो बनाया गया है ढांचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट के लिए, अगर हम थ्योरेटिकली उसका कैपेसिटी जिसके लिए वो बना था उसको देखें तो जितना भी एरिया कल्टीवेशन में हमारे देश में है शायद पूरा कवर हो जाता. उसको हम कल्चरेबल कमांड एरिया बोलते हैं. तो वो 140-45 मिलियन हेक्टेयर है. एग्रीकल्चर में उतनी ज़मीन नहीं है हमारे, 140 से कम है. बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन, बहुत सारे कारण हैं, और जिसको आप चैलेंज भी ले सकते हो, जिसमें सोशल है, मॉरल है, इथिकल है, एवरीथिंग इंक्लूडिंग. हम सब मिला के शायद 70 मिलियन हेक्टेयर इरीगेट कर पा रहे हैं, उससे कम 68-69. तो वो जो बड़ा गैप है वो किस वजह से है, अगर इसको हम समझें तो हम शायद पानी की इस समस्या को, कि उपलब्धता की समस्या के चैलेंज का आंसर कर सकते हैं. ज़्यादा चीज़ें सबको पता है, किस तरीके से हम काम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में. स्ट्रक्चर पार्ट को लेकर शुरू से देखें तो कैचमेंट से लगभग हमारा इतना सेडिमेंट आता है. जब भी हम डिजाइन करते हैं तो एक उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है. जब हम समझते हैं कि इतना सिल्ट आएगा, जमा होगा, 1 से 2% लगभग कैपेसिटी हर साल हमारे रिजर्वायर की खत्म हो जा रही है सेडिमेंट आने से. तो कैचमेंट को हम प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए. और कैपेसिटी लॉस का मतलब ये लगभग परमानेंट लॉस होता है जब तक कि उसको आप कभी खाली ना करें, और उसके लिए एक अलग प्रोग्राम की बात होगी. पहला ये है. और दूसरा, जो पानी उपलब्ध है उसको खेत तक पहुंचाने के लिए अगर स्थिति आप केनाल सिस्टम की देखें तो इतना इनफिशियंट है, क्योंकि बहुत जगह अनलाइंड है, बहुत जगह उसके वजह से दूसरी ग्राउंड वाटर ऊपर आ गए हैं, सैलिनिटी आ गई है, वो सारी समस्या जुड़ी हुई है. तो खेत तक पहुंचाते इतना सारा गैप है. तो हालांकि ये आधारित ढांचा संबंधित ये चैलेंज है. शायद हम यहाँ बैठकर इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ काम कर सकते हैं. तो ये पहला चैलेंज मैं कहूँ मैडम. और जब वहाँ पहुँच गया खेत में तो दूसरा चैलेंज होता है कि आप उसको कितना प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं. अक्सर हम ज़्यादा डालते हैं, पानी के बारे में लिटरेसी नहीं है लोगों का.
लोगों के पास पता नहीं है कि खेती के लिए ऐसा हो गया है कि बहुत पानी चाहिए। शायद ये इसमें सत्यता नहीं है। और अभी जो हमसे पहले परिचर्चा हो रहा था, अगर उस तरह की पद्धति अपनाएं तो बहुत सारी पानी को आप ऐसे ही बचा लेंगे, तो बहुत जगह ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा लोगों तक पानी पहुंचा पाएंगे। तो मैं समझ नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं मैडम। मैं यहाँ पे अभी विराम लेता हूँ, शायद अगले चक्र में अगर आप और कुछ सुनना चाहेंगे तो मैं बात करूँगा। आप आगे बढ़ सकते हैं मैडम। थैंक यू वेरी मच गोपाल जी। आपने जो पानी को प्रभावित तरीके से इस्तेमाल करने की बात की, नसीम हमारे बीच में हैं जो मराठवाड़ा रीजन से बिलोंग करती हैं और बहुत दशकों से उस रीजन में काम कर रही हैं वहाँ के महिला किसानों के साथ। नसीम, आपसे मेरा सवाल है कि पिछले 2-3 डेकेड से आप उस रीजन में काम कर रही हैं। आपके नज़रिए में पानी को लेके मराठवाड़ा रीजन के स्पेसिफिकली क्या चैलेंजेस रही हैं और इसमें क्या चेंज आया है पिछले 2-3 डेकेड्स में? अगर कुछ आया है तो आप प्लीज़ वो शेयर करिए हमारे साथ। थैंक यू अनंतिका। जैसे आपने बोला उस्मान, मराठवाड़ा रीजन ये पूरा अगर हम देखें तो ड्राउट प्रोन ड्रेन के एरिया की तरह जाना जाता है, जहाँ पे रेनफॉल हमेशा कम ही होता है। जैसे अगर हम 5 साल 10 साल का एक एवरेज निकालते तो 700 मिलीमीटर बारिश होता है। और दूसरा, हमारा जो रीजन है वहाँ पे एक्वीफर्स लाइक ग्राउंड में जो पानी जाने की जो क्षमता है, ग्राउंड में जो पानी धारणा करने की क्षमता है वो पूरा प्लेटोज पे है, तो वहाँ पे पानी जाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम बिहेवियर की तरफ देखते हैं लोगों की, तो जैसे पश्चिम महाराष्ट्र में लोग पानी, नदियाँ हैं वहाँ पे पानी की यूज़ करके शुगर कैन जैसे गन्ने की खेती करते हैं, तो मराठवाड़ा में भी लोगों को लगता है कि गन्ने की खेती करते हैं। तो जिससे जो उनके हमारे रीजन की वो क्रॉप नहीं होने के बावजूद हम वो क्रॉप कर रहे हैं। और वो क्रॉप करने के लिए जो ग्राउंड वाटर की जो यूज़ है वो बहुत ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है सामने। एक तरफ रेनफॉल कम है, दूसरी तरफ हमारा यूसेज रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो हमारे एक्सपीरियंस में जब 2012 से 15 का जो ड्राउट था वो बहुत ही सीवियर ड्राउट था, और जब हम महिलाएं साथ में आके इस चीज़ के ऊपर चर्चा किए और हमको ये समाधान दिखाई दे कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। जैसे हमको ये पता है कि हमारे पास पानी कम है, तो फिर हम पानी की ज़रूरत को कम करके हम हमारी खेती कर सकते हैं। जो हमारी ट्रेडिशनली, अगर हम लोग हमारी पारंपरिक पुराने हमारे जो घर के दादा दादी वगैरह थे, तो वो जो क्रॉप्स थे हमारे, वो क्रॉप्स अभी भी कर सकते हैं और उसके लिए पानी की कम ज़रूरत है। तो जैसे अगर हम एक मोटा बोलते हैं कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड को हम कैसे वाटर को मैनेज करेंगे, जैसे सर ने भी बताया कि बड़ा गैप है दोनों जगह में। तो महिलाओं के पार्टिसिपेशन से, लोगों के सहभाग से अगर उस रीजन में हम ये प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जहाँ एक्वीफर्स हैं या जहाँ पे पानी कंजर्व करने की क्षमता है, पानी धारणा करने की क्षमता है, वो उस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाएं। दूसरी तरफ से जब खेती हम कर रहे हैं तो उस खेती में क्रॉप प्लानिंग को लेके, क्रॉप की प्रैक्टिसेस को लेके पानी की रिक्वायरमेंट को कम करें। तो दोनों इस स्तर पे काम करके हम पानी की रिक्वायरमेंट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और पानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे ये जो बदलाव है, वो बदलाव ये है कि हम अपनी इवन अगर हम देखते हैं कि शुगर कैन अगर हम कर रहे हैं फ्लडेड वाटर से कर रहे हैं, तो उसकी वजह में अगर हम टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा यूज़ करते हैं तो किस तरह से क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी हम काम कर सकते हैं। तो ये दोनों, बट उसके साथ ये सबसे जो बड़ा मुद्दा है, सो सुबह से भी हम लोग बात कर रहे हैं कि लोगों का सहभाग, कम्युनिटी का सहभाग बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिटी प्लानिंग में वो सिर्फ रिसिपेंट की तरह ना हो कि कोई भी स्कीम को लेने के लिए वो एक बेनिफिशरी की तरह ना होते हुए वो एक स्कीम को के डिज़ाइन में वो होना चाहिए, प्लानिंग में होना चाहिए। तो
गवर्नमेंट के साथ मिलके किस तरह से कम्युनिटी और लोकल पंचायत एक साथ आके अपने गांव के प्लान्स बना सकते हैं, और जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के, तो वो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की यूटिलाइजेशन कम्युनिटी स्तर पे भी कौन से स्ट्रक्चर्स बनेंगे और इंडिविजुअल फार्मर लेवल पे भी किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे कि जिससे शिवार मतलब हम जो बोलते हैं ना पूरा कैशमेंट में आने वाला पानी का भी कंजर्वेशन कर सकते हैं और मेरे खेती पे पड़ने वाले पानी का भी मैं कंजर्व करके इस्तेमाल कर सकता हूँ। थैंक यू नसीम, आपने आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट खोल दिया। आपने बोला कम्युनिटी, आपने बोला पंचायत का भी साथ में मिलके काम करना बहुत ज़रूरी है, और इस तरीके से जब हम पानी के मुद्दे की बात करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनका हर एक स्टेक होल्डर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है टू प्ले टू इम्प्रूव वाटर सिक्योरिटी फॉर इंडिया। मैं बसंत जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उनका काफ़ी अरसे से एक्सपीरियंस रहा है मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप्स में काम करने का, जहाँ पे NGOs हैं, CSOs काम कर रहे हैं, वो कम्युनिटीज़ के साथ इंगेज हो रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ इंगेज हो रहे हैं, और गवर्नमेंट के काफ़ी लेवल्स पर इंगेजमेंट जारी है। चाहे वो बिल्कुल फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव्स हों, जूनियर इंजीनियर्स हों, उनसे लेकर बिल्कुल स्टेट लेवल तक इंगेजमेंट जारी है। तो बसंत जी, आपके नज़रिए में अगर हम पानी को सिक्योर करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म और लार्ज स्केल पे, तो आपके नज़रिए में कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और उनके साथ किस एस्पेक्ट पे इंगेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है? जी देखिए, हम लोग पानी वाटर सेट में छत्तीसगढ़ में जो प्रधान के जो PPT था उसमें भी बता रहे थे कि मेगा वाटर सेट एक बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, और जिसमें 24 ब्लॉक में करीब 12 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मिल के काम कर रहे हैं। इस पार्टनरशिप में देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार, BRLF, एक्सिस बैंक फाउंडेशन, हमारे जैसे सिविल सोसाइटीज़, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे PRI पंचायत के साथ, NRLM के साथ भी हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। इसको 24 ब्लॉक में अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे थे कि जो शुरुआती अपना अनुभव है, मैं उनको शेयर कर रहा था कि जब ये वाटर सेट प्रोजेक्ट मेगा वाटर से उसके पहले से हम लोग काम कर रहे हैं, चूँकि ये प्रोजेक्ट आने के बाद कैसे पार्टनरशिप होता है हम लोग उसको सीखे हैं। तो हम लोग जब शुरुआत काम किए तो गाँव में गए, PRI पंचायत के साथ मीटिंग, NRLM के साथ मीटिंग, और प्रधान है और टेक्निकल जो पर्सन जैसे GIS बेस होना चाहिए, ये सब काम को टूल को हम लोग उसमें लाएं। और दिक्कत ये हुआ कि जब शुरुआत में हम लोग पंचायत में जब गए तो मनरेगा के साथ, जैसे मनरेगा के साथ बड़ा MOU है, तो मनरेगा के साथ जब काम कर रहे थे तो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो मनरेगा के अधिकारी को भी प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का उतना जानकारी नहीं था। फिर हम लोग उसको बातचीत की, और पहले तो ऊपर लेवल में ट्रेनिंग किए, जनपद लेवल में, फिर हम पंचायत लेवल में गए। फिर सबसे बड़ा बात था वहाँ पे जो प्लान होता है रोजगार सहायक, और उनको भी मेड लोग को भी ट्रेनिंग दिए कि कैसे लेआउट करना है, कैसे उनको हमको काम करना है। आप देखेंगे कि वहाँ पे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था छत्तीसगढ़ में, नरवा गरवा घुरवा बारी, उसमें भी हम लिंक थे, नरवा जो प्रोजेक्ट था। तो अब देख रहे हैं कितना नरवा का पानी को भी रोकने का काम किए, ऊपर के पानी को सब रोकते रोकते नीचे तक लाया। बहुत सारा गेबिया, अनकन 2, चेक डैम, अर्थन डैम, और मिट्टी वाला जो काम ज़्यादातर डबरी बनाना। तो आप देखेंगे कि उस काम को बड़ा स्केल में हम लोग ये 24 ब्लॉक में किए सभी पार्टनर्स। और आप एक्सिस बैंक फाउंडेशन इनके लिए जब सहयोग किया तो इसी प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी उसमें चर्चा हुआ। छत्तीसगढ़ का ये बड़ा मेगा वाटर सेट प्रोजेक्ट आया, कैसे इसमें कर रहे हैं, काफ़ी विजिट भी हुआ। और शायद इस प्रोजेक्ट को लेके हम लोग काफ़ी जब बातचीत रखे तो मेरे को लग रहा था, जब अर्थ अवार्ड का एक्सिस बैंक फाउंडेशन को मिल रहा था तो उसमें सारा वीडियो हम लोग देख रहे थे, छत्तीसगढ़ कार्ड का मेरा भी वीडियो है उसमें, और आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं, एक्सिस बैंक के और प्रधान के साइड में भी है। तो अगर हम लोग इसको पानी बचाने का सिर्फ काम किए, रोके भी, लेकिन आजीविका को लिंक किया,
बड़ा बात था कि हम लोग मछली पालन के लिए हो गए और प्लांटेशन की ओर गए, पानी के रोकने के साथ साथ खेती बाड़ी को बढ़ा दिया। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, जितने भी IFR के जो ज़मीन था, जो ज़मीन मिला है, उस ज़मीन में हम लोग प्रयास किए कि उनको भी थोड़ा खेत को रिपेयरिंग करके काम किया जाए, ताकि पानी ऊपर से रुकते और फिर डबरी बनाने का काम किए मनरेगा में। तो ये बड़ा काम था। पहले ही मेरे को समय समाप्त हो गया कर दिखा दिए, तो थैंक यू। नहीं, आप कुछ 1-2 मिनट और ले सकते हैं, प्लीज़ कंप्लीट करिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम लोग प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ के इतना पानी का जो हम लोग अभी बहुत सारा केस स्टोरी बनाए कि पानी के ऊपर जब तैयार कर रहे थे तो वाटर बजट लेके हम लोग तैयार किए। उस गांव में जब बेस लाइन सर्वे किए तो हम लोग जाके जब बेस लाइन कर रहे थे तो इस गांव में कितने लोग हैं, कितने शौचालय हैं, कितने, तो शौचालय सब घर हैं, लेकिन कितने जानवर भी हैं, इनको भी हम लोग कैलकुलेट किए और पूरा जब बेस लाइन किए तो उसके हिसाब से हम लोग वाटर बजट का तैयारी किए। और जब वाटर बजट तैयार किए तो उसको प्रेजेंट किए, हम लोग ग्राम सभा में बाकायदा पास किए और ग्राम सभा में पास करके जिला प्रशासन के साथ भी प्रेजेंट किए, ताकि हम लोग आने वाला समय में जो लेबर बजट है, ये चूँकि ये काम तो मनरेगा के साथ था, छत्तीसगढ़ सरकार और इनके साथ MOU था, तो हम लोग उसको भी लेबर बजट में जोड़ने का प्रयास किए। तो यही, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बसंत जी। जितने भी हमारे पैनलिस्ट ने बात करी है, आई थिंक एक चीज़ जो इमर्ज हो रही है सबके बातों से वो ये है कि पानी की जो समस्या है वो एक बहुत ही बड़ी विशाल समस्या है, और ये समस्या ऐसी है कि ये बहुत ही रीजनली कंटेक्चुअली ड्रिवन है। जो समस्या फॉर इंस्टेंस गुजरात में है वो समस्या वो समस्या पंजाब में नहीं है, जो समस्या पंजाब में है वो समस्या छत्तीसगढ़ में नहीं है, बहुत ही रीजनल है। ये बहुत स्टेक होल्डर्स को इम्पैक्ट करती है, ये सिर्फ फार्मर्स या कम्युनिटी या गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। और इसीलिए अगर हमें पानी के क्षेत्र में कुछ काम करना है और उस वाटर सिक्योरिटी पे कोई डेंट करना है, तो कोलैबोरेशन बिकम्स very critical, and collaboration not just with 1 or 2 people but across sectors. On that light, in our panel we have Neerath, who has led many successful collaborations and coalitions in the past. Neerath, my question to you is, what makes when you lead collaborations which have very diverse stakeholders who have competing agendas, I would say sometimes, and competing goals, what makes them work and what stops us from collective action on such an important concern? Yeah, thanks Anantika, and thank you for having me here. I'll answer your question, but पहले if I can ask a question of the audience, इस रूम में आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे है? कितना पानी है इस रूम के अंदर? हाँ? Let the audience answer. इस रूम में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे है? ओके, शरीर के अंदर, ओके, और कहाँ पे? टेबल पे, ओके, ओके, एनीवन एल्स? हाँ, हवा में, ओके। एक्चुअली सबसे ज़्यादा पानी इस टीवी में है। ये कुछ लोगों को दिख नहीं रहा है, बट यू सी दैट इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, उसमें कितना पानी है? इस टीवी में, दिस मस्ट बी लाइक 60 इंच का टीवी होगा ये, इसमें एक स्विमिंग पूल से ज़्यादा पानी है। ये जो मैं शर्ट पहना हूँ, इसमें करीब 2000 लीटर पानी है। सो द प्रॉब्लम, कमिंग टू योर क्वेश्चन, राइट, व्हाई इज कोलैबोरेशन रियली इंपॉर्टेंट? सो मोस्ट वाटर is not actually water. It shows up in our life as things, okay? Electronics, clothes, food. आपने जो lunch किया अभी 2 घंटे पहले, आपने depending आपने क्या खाया और कितना खाया, anywhere between 1000 liters to 5000 liters. That's how much water you eat. Now what ends up happening is when you've got such a situation where more water is embedded than actually in the ground or in the air, then obviously all the stakeholders who are responsible for manufacturing these things,
for processing these things, farmers हो गए, industry हो गई, हम खुद पीते हैं, वो सारे आ जाते हैं in the picture, right? And like you said, incentives are often very different, but actually पानी बहुत heavy होता है, right? पानी is very heavy, but embedded पानी जो इस शर्ट में पानी है वो बहुत लाइट है. इंडिया बहुत एक्सपोर्ट करता है पानी, राइट, एज अपैरल, एज फूड. नाउ द प्रॉब्लम इज, इवन दो आपने जो बोला पंजाब की प्रॉब्लम अलग है और इसकी प्रॉब्लम अलग है, हरियाणा की प्रॉब्लम अलग है और कर्नाटका की प्रॉब्लम अलग है, बट एक्चुअली ऑल ऑफ दैट पेल्स विद दिस ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पानी, राइट. सो आई थिंक द मैक्रो फैक्टर्स हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. जो मैं बोल रहा हूँ ओवर द लास्ट 10 odd years, मैंने डालबर्ग के, मैं ग्लोबल वाटर प्रैक्टिस लीड करता था, एंड मैंने काफ़ी कुछ लाइक फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, IFC, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जैसे कि WRG 2030 हो गया, या IFC का पैक्ट प्रोग्राम हो गया, या इवन विद इन इंडिया नीति आयोग ने काफ़ी सारे प्रोग्राम सेटअप किए हैं. तो ये सारे कोलैबोरेटिव्स हैं. ये रिकग्निशन की पानी को सॉल्व करने के लिए कोलैबोरेशन चाहिए. ये काफ़ी पुराना थॉट है, इट्स अ वेरी ऑब्वियस थॉट कि हाँ भाई पानी इतनी जगह शो अप करता है, यू हैव टू कोलैबोरेट. सो फॉर इंस्टेंस देयर आर थिंग्स लाइक द ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप, GWP, जो कि मिड 1990s में स्टार्ट हुआ, फिर WRG वगैरह 2030 स्टार्टेड इन 2008. इंडिया में भी त्रिवेणी वाटर इंस्टीट्यूट वगैरह है जो कि इंडस्ट्री में कोऑर्डिनेट करता है, वो हुआ है. द प्रॉब्लम एंड्स अप बीइंग कि अभी हो क्या रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ हेट्रोजेनिटी. सो व्हाट्स द यूनिट दैट, किस यूनिट पे कोलैबोरेशन होना चाहिए, एंड आई थिंक अलग अलग यूनिट्स पे होना चाहिए. इफ़ यू लुक एट something like a global water partnership, it's a global kind of thing, and they're trying to work with governments and civil society and really drive bottom-up stuff. People like WRG, people like 2030 and Triveni, they're trying to do an industry-based thing. So that's a whole different unit. You've also got grassroots kind of organizations. You've got efforts like the India Water Portal, which work at hyper-local levels. You've got, let's say, WRI Aqueduct. They have very, very hyper-local data at the sub-basin level. I think so. Collaboration at all of these things is important, but the problem that I have seen over the last 10 odd years is that all of these collaboratives don't actually collaborate with each other, right? So what you need is meta almost collaboration, and I think the thing that will become the glue to enable this meta collaboration is data. So a lot of hyper local data will actually, so collaboration needs to happen around data, because data is will tell you what's going wrong, right? So I think, and there is now evidence. For instance, Jason Morrison, he heads the CEO Water Mandate. वो लोग एक अभी कर रहे हैं जो रिवर बेसिन लेवल कोऑर्डिनेशन, वो सब, एंड द होल थिंग इज प्रेमिस्ड ऑन वेरी वेरी हाइपर लोकल डेटा. जैसे गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना कुछ साल पहले, दे हैव IoT नाउ सेंसर्स विच आर मेजरिंग एक्सट्रीमली ग्रैनुलर डेटा ऑन soil moisture, on groundwater, etc. So I think that data will enable collaboration, and I think so that's one piece. And the last piece I'll say before I pass it back to you is that I think we need more diverse actors on the table. Right now, I think the kind of collaboration that's happening is still the same old actors. When you walk into a conference, you see the same old people who've got PhDs in water science or whatever. I think you need to widen the aperture, and you need people who, let's say, bring in behavioral expertise. Because water is a deeply behavioral subject, right? You need people who are anthropologists, ethnographers, who understand the context of the community, and all of them need to speak to each other. So that's a slightly long-winded answer, but hopefully useful. Thanks, Indra. That's very, very interesting, and I think you touched upon 2 or 3 very critical points. I think सबसे पहला point ये है कि water की जो समस्या है, that is invisible. Like, you know, when you called out that the TV has 1 swimming pool worth of water, or the T-shirt or the clothes we are wearing has thousands of liters. It's actually true. When we think about water, we very quickly jump into agriculture, and we jump into, you know, areas where we see water as a key input. And so I think that's and the water of, I mean, and that invisibility is what we are paying for, not just because we don't relate to it, but also because we forget about it. Like, abhi Delhi mein itni barish hui hai, no one's thinking about, you know, what the summer seasons look like, and, you know, what water scarcity looks like. But very recently we had instances in cities like Chennai, Bangalore, which almost ran out of water. So, you know, it's very easy to forget water. So very important point. And I think the second point is very critical, that the data becomes really, really important. And on that point again, since we've got, you know, Gopal on the panel with us, I want to talk to Gopal. I want to get Gopal's views on, you know, water being such a diversified
topic, right? When you look at it between center, state, even within a state, the different departments that are looking at water have competing goals and incentives. How do you, how do you zero in on couple of key metrics that you track? And Neerath, you spoke about, river basin level approach or, watershed level approach. We've had several approaches of, what is the unit that you look at. So, Gopal, if you could come in here and talk a little bit from your research, that what's the consensus driving, what kind of consensus is coming together on water metrics? What should we track to be able to see the needle shift on the ground? मैं इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि कभी कभी हम बातों का अहमियत देते नहीं हैं और कभी कभी ऐसा भी सोचने लगते हैं कि कुछ बदलाव हो नहीं रहा है। तो मैं पहले ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि लोगों ने अपना रोल प्ले किया है, चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, प्राइवेट को मैं खासकर ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि खासकर पानी का जो इफ़िशिएंट यूज है, जो अगर आप ड्रिप करें, ये करें, जो आजकल लोग बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार से ज़्यादा प्राइवेट का हाथ रहा है ये तकनीक को बढ़ावा देने में और आने में। तो और एक थोड़ा तकनीकी समस्या क्या हुई है कि जो हमने इरिगेटेड एरिया, खासकर एग्रीकल्चर फोकस में बात कर रहा हूँ क्योंकि सब ज़्यादा पानी कृषि लेता है, तो उसको जो परिभाषित हमने देश में किया है ना, उसमें भी एक थोड़ी समस्या है। जैसे आप छोटे स्केल पे कोई रिजर्वायर में हार्वेस्ट करके इरिगेट कर रहे हैं फसल को, बहुत जगह आपको मिल जाएगा, उसको इस परिभाषा में रखा नहीं गया है और हमारे बहुत सारे प्रयास उस दिशा में रहे हैं। जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट में ग्राउंड वाटर रिचार्ज और विड्रॉल तो हो जाता है, लेकिन जो सरफेस में आपने हार्वेस्ट किया स्केल पे, उससे कुछ एरिया इरिगेट किया। अगर आप देखें तो अभी तक 55 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में वाटर शेड प्रोग्राम चला है। आप 2-2 हेक्टेयर ही जोड़ लें सब में तो काफ़ी हो जाएगा, शायद उतना नहीं हो पाया है। तो एक तो ये समस्या है कि इसको परिभाषित ढंग से नहीं किया गया है और इससे कई बार हम हतोत्साहित हो जाते हैं कि पूरे प्रोग्राम सरकार के चल रहे हैं, पूरे प्राइवेट लगे हैं, CSO के भी अपने रोल हैं करने में, बदल नहीं रही स्थिति। तो वहाँ पे एक समस्या ये भी है। कुछ बातों पर जो ध्यान नहीं दिया गया, मैं उसके तरफ आपको आकर्षित करता हूँ। खासकर फ्रेगमेंटेड एंड अनकंसोलिडेटेड प्लानिंग है कंट्री में। आपने ही पहले कहा कि जब आइडिया था तो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का ये पहले ही जो पहला वाटर पॉलिसी बना था वो तभी से रिकमेंडेशन हो रहा है। अभी तो शायद 4th टाइम रिवाइज हो रहा है, वो रिकमेंडेशन कंटिन्यू है, लेकिन उस पर हम काम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे जो कभी कभी ओवरलैपिंग जो डायरेक्शन है, इतने सारे लेयर्स ऑफ गवर्नेंस हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। वहाँ रिवर बेसिन के लिए अथॉरिटी बनाने के बाद पहले वाटर कमीशन से था, जिस पे हम काम नहीं कर पाए अभी तक एक भी रिवर वाटर बेसिन अथॉरिटी बनी नहीं है कंट्री में, जबकि इसकी बात 70s से हो रही है। तो कुछ तो वहाँ पे लेकिन है। कुछ तकनीकी बात में मैं करूँ जिस पे मैं थोड़ा CSO के रोल की तरफ आना चाहता हूँ। मैं आपके मैट्रिक्स से थोड़ा हट रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ लिंक कहाँ आएगा, आई विल कम टू दैट पॉइंट। ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक ऐसा हिस्सा है जिसको अहमियत कम दिया गया सरकार के द्वारा भी और प्राइवेट के द्वारा भी। एक्सट्रैक्शन की फैसिलिटी, उसको निकालने की सुविधा बढ़ाने के लिए एनर्जी उपलब्ध कराने पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन रिचार्ज पे कम ध्यान दिया गया। मैं एक उदाहरण देता हूँ थोड़े शब्दों में कि मैं एक वाटर शेड में काम कर रहा था और मैं एक रिचार्ज फिल्टर प्रमोट कर रहा था मैनेज्ड एक्विफर रिचार्ज के लिए, और मैं किसान से बात किया तो उसमें एक समस्या क्या आई कि किसान से हम थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी ले रहे थे, हम ज़्यादा दे रहे थे। उनका सीधा प्रश्न था कि हम रिचार्ज तो कर लेंगे लेकिन वो पानी मेरे लिए तो सिर्फ नहीं है, तो मैं अपना ज़मीन क्यों दूँ, मैं अपना इन्वेस्ट क्यों करूँ। ये प्रैक्टिकल सवाल था और कठिन था। तो फिर हमने उसमें वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत उसको कम्युनिटी लेवल पे किया और मुझे उसमें CSO से मदद लेना पड़ा क्योंकि CSO कम्युनिटी मोबिलाइज कर पाई और कम्युनिटी स्केल पे हमने 40 कॉमन लैंड पे किया एंड देयर वाज ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दैट। तो मैं दोनों देख पा रहा हूँ, इंटरवेंशंस भी देखा, उसका इम्पैक्ट भी देखा और रोल CSO का देखा। तो कुछ चीज़ें जो कम्युनिटी स्केल पे ही हो सकते हैं उसमें आप अच्छा रोल निभा सकते हैं, निभा रहे हैं और उस दिशा में काम करें। दूसरा, आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रमोट करने की बात हो रही है, ये ड्रिप और इस इरिगेशन की बात हो रही है, उसमें भी एक बड़ा क्लू है।
आप अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें किसान के पास, तो आप देखेंगे कि 1-2 साल तक तो वो लगाते हैं, क्योंकि उनको हर क्रॉप के बाद हटाना पड़ता है, लाना डालना पड़ता है, कुछ डैमेज हो जाते हैं। किसान इतने प्रशिक्षित नहीं है कि वो अपने लेवल पे कर सकें। कंपनी को आप फ़ोन करेंगे तो शायद क्रॉप सीजन निकल जाने के बाद आप तक आएगा। तो मेरा इसमें मानना है कि ये सारी चीज़ें अगर कम्युनिटी लेवल पे अडॉप्ट हो, पूरा कंट्री ना करे, जहाँ पे भी ले जाएं, अगर कम्युनिटी लेवल पे अडॉप्ट हो, इनिशियल कैपेसिटी बिल्डिंग हो, 1-2 लड़का आप उसी क्षेत्र का उसको ट्रेंड कर दीजिए, कंपनी रोज आने की ज़रूरत नहीं है, दे विल हैव माइनर मेंटेनेंस एंड ऑल, बहुत इम्पैक्ट होगा इसका उसके एडॉप्शन में। एडॉप्शन पैसे को लेकर तो एक बाधा हो सकती है, सबको पता है। एक्चुअल बाधा मैंने जो देखा अपने आंखों से कि 1-2 सीजन लगा देते हैं, सब्सिडी मिल गया उनको, बाद में 2-3 बार हटाते वो डैमेज हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो मैं कुछ बड़ा प्रैक्टिकल जो क्षेत्र स्केल में, आपके मुद्दे से डेविएट हो रहा हूँ मैडम, लेकिन मैं चूँकि सोच रहा था कि आपको इसमें लाऊं कैसे, और जो मैंने अनुभव किया वो मैं साझा कर रहा हूँ कि वहाँ पे कम्युनिटी का रोल है और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के आप मास्टर हैं। मैं इसी मंच से धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रधान के साथ काम भी कर रहा हूँ मंडला में, मेरे एक मित्र भी पीछे बैठे हुए हैं यहाँ पे मंडला से, और मैं देख रहा हूँ कि जो आपकी क्षमता है ना कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का, खासकर महिलाओं को आगे लाने का, ग्रुप का, ये एक बड़ा जरिया हो सकता है आपके ग्राउंड वाटर रिचार्ज मूवमेंट में, लोकल वाटर सिक्योरिटी प्रमोट करने में कम्युनिटी स्केल पे, विलेज स्केल पे, और दूसरा जो मैंने कहा कि ये अडॉप्ट करने में इन तकनीक को। तो मैं इस अलग मुद्दे पे बात किया हूँ, लेकिन मैं यहाँ विराम देता हूँ, आगे बढ़ें। थैंक यू। एक वहाँ सिग्नल लेकर बैठे हुए हैं, उनको देखकर थोड़ा घबरा रहे हैं, तो इसलिए बीच में मैं बंद। नहीं, हम इसको जल्दी करेंगे। गोपाल जी, थैंक यू सो मच। एंड आपने जो कम्युनिटी और कलेक्टिव एक्शन की बात करी, तो इसमें कम्युनिटी से जब कम्युनिटी और कलेक्टिव एक्शन की भी हम बात करते हैं तो काफ़ी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी नसीम से कि नसीम, आपका जो प्रोग्राम रहा है उस्मानाबाद में, प्लीज़ आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शॉर्ट में शेयर करें कि वाटर सिक्योरिटी जो आपने धाराशिव उस्मानाबाद या धाराशिव के लेवल पर आप जो वाटर सिक्योरिटी चेंज देख रहे हैं थ्रू योर वर्क एंड मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन, अगर आप उस पर थोड़ा सा लाइट डालें तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। जैसे मैं ये बता रही थी कि कम्युनिटी और स्टेक होल्डर्स लाइक ग्राम पंचायत मिल के काम करना चाहिए। तो धाराशिव में हमने लास्ट 3 इयर्स से ये प्रयास किया था। जैसे हम 2012 से ही एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर में जब काम करें तो ये हमको लगा कि वाटर कंजर्वेशन और वाटर सेविंग के ऊपर भी काम करना चाहिए। तो हम पिछले 3 साल में जैसे मास्टर ट्रेनर्स हमने बनाए हैं। लगभग 200 गांव में हमारी महिलाएं वाटरशेड की पूरी जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हमने उनको ट्रेन किया, और उसके बाद वो अपने अपने गांव में जाके लोकल पंचायत के साथ मिलके गांव के प्लान्स को बनाए, अपने महिला ग्रुप्स और ग्राम पंचायत मिलके। और उसके बाद यही ग्राम पंचायत और महिलाएं मिलके पंचायत समिति और जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, जैसे सॉइल वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और मनरेगा है, ये तीनों डिपार्टमेंट में उन्होंने अपने प्लान्स को सबमिट किए जो जीपीडीपी की प्रोसेस से। तो ये दिखाई दिया कि जहाँ पे जैसे पिछले 3 साल 4 साल पहले अगर हम देखते हैं तो MREGS को लेके कोई काम बहुत कम काम हुए थे, और इवन बाकी के डिपार्टमेंट से भी अलग अलग स्तर पे काम हो रहा था। लेकिन वाटरशेड कॉन्सेंट्रेट करके काम करने के लिए जब ये प्लान बने तो आज ये प्रयास हो गया पिछले 2 साल में कि एटलीस्ट एक प्रोसेस, एक मोमेंटम बिल्ड हो गया कि कम्युनिटी लेड प्रोसेसेस करके वाटरशेड प्लान बनाएंगे। और सिर्फ जैसे सर भी बता रहे थे कि वाटरशेड प्लान वाटर बजटिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएंगे, तो कम्युनिटी लेवल पे एक वाटर बजटिंग की भी प्रोसेस हो रही, उसके साथ साथ फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड्स निकल आ रहे हैं और उसको फिर जीपीडीपी की प्रोसेस में डालें। तो इससे यही कि दोनों तरफ लाइक फार्मर्स को मेरी क्या जवाबदारी है और पंचायत की अपनी जवाबदारी क्या है, और उसके साथ साथ हम अपनी सरकार से जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे हमको क्या चाहिए, ये पूरी क्लियर हो, ये प्रोसेस पूरी इस्टेब्लिश हुई। और अब जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से भी ये रिस्पांस आ रहा है
कि यही प्लान जो कम्युनिटी में प्लान बने हैं उसी को जीपीडीपी की फाइनल अल्टीमेट प्लानिंग में उसको लेंगे। तो अभी तीसरे साल में हम लोग जा रहे हैं कि हर साल हम ये देख रहे हैं कि कितने प्लान सैंक्शन है और कौन सी चीज़ें बाकी है, वो फिर से कैसे रीसबमिट करेंगे प्लान के अंदर नेक्स्ट ईयर के। तो ये प्रोसेस से गांव में जो जैसे ग्राम पंचायत के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का बजट भी आ रहा है, और उसके साथ साथ कम्युनिटी भी अपनी जवाबदारी में, जैसे कुछ जगह उनका कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, उनकी उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको क्या करना चाहिए। तो ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे की जवाबदारी में काम कर रहे हैं। तो इससे एक इम्पैक्ट आ रहा है कि हम लोग अभी हम 1 लाख फार्मर्स के साथ एक डिस्ट्रिक्ट में सैचुरेटेड वे में डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, जब पूरे ड्राउट प्रोन एरिया में अगर ये मॉडल हम बता सकें कि सरकार और समुदाय साथ में मिलके काम करके अगर ये कर सकते हैं तो एक पूरा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो उसको हमने डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल ये नाम रखा है कि पिछले 1.5 साल का अगर मैं डेटा आपको बताऊं तो डिमांड और सप्लाई साइड दोनों के काम से हमने 74 बिलियन लीटर वाटर को सेव कर पाए हैं, प्रैक्टिसेस के थ्रू, क्रॉप प्लानिंग के थ्रू और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के। थैंक यू नसीम। एंड इसी आपने एक जवाबदारी की बात करी, जब कम्युनिटी गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी एक दूसरे के साथ जवाबदारी में काम करते हैं तो हम ग्राउंड लेवल पर वो चेंज देख पाते हैं। बसंत जी, आपके एक्सपीरियंस से अगर आप एक अनुभव शेयर करना चाहें इस जवाबदारी पे कि किस तरीके से ये जवाबदारी ग्राउंड पे रिजल्ट्स कैसे हम इंगेज और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं टू सी रिजल्ट्स। देखिए, मैं समझता हूँ कि पानी के बारे में कितना भी पढ़ लें, लेकिन जो गांव का बुजुर्ग आदमी था हमको बोले कि यार यहाँ तालाब बनाने से अच्छा पानी रुकता है, उसने हमको बोला, सिखाया। तो एक मैं अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि एक गांव है तुएगाहन गांव, और वो पहाड़ से जो पानी इतना तेज़ रफ्तार से उतरता था और वो पूरा नाला बन चुका था और महानदी में जाके गिर जाता था। अब वो पानी को रोकने के लिए हम कोई टेक्निकल नहीं, थोड़ा सा हम लोग उस वहाँ के बुजुर्ग लोग से मिल के अर्थन डैम बनाना, पानी को डाइवर्ट करना, बीच बीच में हमारे जो और इंजीनियर लोग थे उनके साथ मिल के थोड़ा पानी की रफ्तार को धीमे करना। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ महानदी से वहाँ तक पहुँचने में कि 75 हेक्टेयर ज़मीन खराब हो रहा था और पूरा नरवा बन गया था। वो पानी को डाइवर्ट किए हम दूसरा जगह, और वो मनरेगा से हम लोग बनाए उसको। और वो उस 75 हेक्टेयर ज़मीन के जो मालिक थे, किसान थे, किसी का 2 एकड़, किसी का 3 एकड़, किसी का 5 एकड़ भी है, उस सब किसानों के एक मीटिंग ली, इसका जिम्मेदारी दिए हम लोग। और आज भी कई लोग देखने जाते हैं उसको, कम्युनिटी अपना समझ के उसको पूरा बना कर रखें, पौधा लगाते हैं, कोई टूटने नहीं देते हैं, पानी उसका जितना लिमिट है उसका आउटलेट भी बना कर रखे हैं। और बड़ा बात है कि वो पूरा नीचे जितना नरवा था वो खेत बना लिए और पानी साइड से गया। और आज भी बोलते हैं कि मनरेगा कितना दिन से शुरुआत काम था और आज देखने भी लगता है कि अभी बना है ये, लेकिन सबने अपना जिम्मेदारी से वो अपना सरकारी वो नहीं समझ के उन्होंने बनाया और फॉरेस्ट के नीचे ही ज़मीन में बनाया था। बहुत सुंदर उन लोग बनाए, अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चूँकि अगर मैं उनके साथ, उनका दर्द था कि उसका ज़मीन पूरा नाला में जा रहा था, महानदी में कट के जा रहा था, और उस दर्द को उन लोग जब शेयर किए तो हम लोग उसको मिल के बनाए सब के सब, तो काफ़ी अच्छा है। और वहाँ से नीचे आते तक हम लोग करीब 61 डबरी बनाए, 61 डबरी बनाए। तो पानी पूरा सीरीज, जैसे आप टॉप में जाओगे सीरीज में दिखता है पानी 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 ऐसा। तो काफ़ी एक अच्छा है, ग्रीनेस दिखता है, पेड़ पौधा भी जगह, मेड़ो ना टूटे उसके लिए वृक्षारोपण काफ़ी किए उन लोग, और काफ़ी पौधा लगाए, बड़ा पौधा, जड़ वाला पौधा सब लगा के प्लांटेशन किए। तो ये मेरा अनुभव था कि काफ़ी अच्छा। वो तुएगाहन का नाम हमेशा मैं जब बोलता हूँ कभी मंच में तो ज़रूर बोलता हूँ। थैंक यू बसंत जी। जितने भी पैनलिस्ट ने बात करी है, आपने ये नेगोशिएशन की बात की है कम्युनिटी के साथ, वाटर बजट्स की बात करी है,
किसी एक लेवल पे क्या हो रहा है कि कम्युनिटीज़ इज़ रियलाइजिंग कि इस चेंज की ज़रूरत है, किसी लेवल पे कुछ बिहेवियर उनका जो है चेंज हो रहा है, अगर वो अडेप्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन अ वाटर बजट कि किस तरीके का क्रॉपिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। मेरा ये सवाल आपसे है बिकॉज आपका एक बिहेवियर चेंज एटलस फॉर बिहेवियर चेंज इन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है विच फोकसेस ऑन बिहेवियर चेंज। पानी का जो एरिया है यहाँ पे जो काम हो रहा है वो ज़्यादातर बिहेवियर चेंज पे ही हो रहा है, चाहे वो काम सरकार के साथ हो, किसी फ्रंटलाइन फंक्शनरी के साथ हो या किसान के साथ हो, मगर उसको ये बिहेवियर चेंज का नाम नहीं दिया जाता। लाइक वी आर नॉट रिकग्नाइजिंग कि जो काम हो रहा है ग्राउंड पे वो एक्चुअली इट्स चेंजिंग बिहेवियर, इट्स चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स। सो again from your experience आप किस तरीके से ABC how can we leverage a platform like ABCD or how can we make sure that behavior change becomes central to a lot of the work that we are doing in water? So I'll take the example. So think of again through a systems lens, right? So if you look at this example of so let's think of three stakeholders. So one, there's a farmer, let's say, who's trying to maybe move to a slightly more water conserving crop, let's say millets, right? Or maybe adopting micro irrigation. That's one. The second is the consumer who is right now not buying millets and should be buying millets. And the third is, let's say, credit agents in NBFCs and banks who give loans to women farmers, right? So let's say we want the system is stuck at a certain level of equilibrium and you want to move the equilibrium. तो इन तीनों का behavior change होना चाहिए। अभी and behavior change, you're absolutely right, जो अभी काम हो रहा है वो implicitly काफ़ी कुछ behavior पे focus करता है, लेकिन उसको behavior change बोलते नहीं है। ये ठीक भी है और एक तरह से थोड़ा सब ऑप्टिमल भी है, क्योंकि सबसे पहले बिहेवियर चेंज जो है वो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, वो सिर्फ कन्विंस करना नहीं है। जो बिहेवियर चेंज होता है वो मैं टेक्निकल टर्म अगर यूज़ करूँ उसको हम आई फ्रेम और एस फ्रेम में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली थिंग्स दैट कुछ ऐसी चीज़ें जो आदमी या जो लोग हैं वो खुद कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सिस्टम अगर करेगा तभी वो होगा। जैसे कि पानी की अगर वॉल्यूमेट्रिक प्राइसिंग होगी या कुछ और होगा या सब्सिडी मिलेगी, एमएसपी होगा, तो वो सारे सिस्टम्स के लीवर्स भी होने चाहिए। सो आई थिंक अगर हम थोड़ी सी फॉर्मल फ्रेमिंग लाएंगे तो ये फ़ायदे होंगे उससे, दैट थोड़ा अपर्चर वाइड हो जाएगा और जो सोल्यूशंस पहले सोचे नहीं जा रहे हैं वो देखे जाएंगे उस टेबल पे। सेकंड ये है कि इवन अगर आप एक विलेज में चाहते हैं कि आपका कोई इनोवेशन डिफ्यूज़ हो, कि कुछ अभी 10 किसान मिलेट्स ग्रो कर रहे हैं, आप 50 लोग ग्रो करें, तो एक नेचुरल रेट ऑफ वो अडॉप्शन है, अज्यूमिंग कि सब कुछ है, लेकिन वो रेट एक्सेलरेट हो सकता है। नाउ बिहेवियरल साइंस जो है वो काफ़ी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं दुनिया भर में, और ऐसी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू हमें जल्दी गेन्स मिल सकते हैं, राइट? सो फॉर इंस्टेंस लॉस अवर्जन है, या फिर सो काफ़ी सारी चीज़ें हम बिहेवियरल टूल किट में हैं जो कि डिप्लॉय अभी नहीं हो रही हैं, जो कि की जा सकती हैं। और क्यों नहीं हो रही हैं, उसीलिए हम लोग एटलस बना रहे हैं, एटलस ऑफ बिहेवियर चेंज, जो कि एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। हम चाहते हैं कि अभी बिहेवियर साइंस बहुत एजोटेरिक है, राइट? सो अभी नोबेल प्राइज विनर्स वगैरह करते हैं, यू हैव दिस थोड़ी आइवरी टार टाइप का है सिस्टम बिहेवियर साइंस का, जो कि नीति आयोग या कहीं और पे लैब्स हैं, स्टेट लेवल लैब्स हैं, लेकिन अभी फुली डेमोक्रेटाइज नहीं हुई है बिहेवियर साइंस। अभी भी बहुत एक्सपेंसिव होता है इंटरवेंशन रन करना, कस्टमाइज इंटरवेंशन रन करना। सो हम चाह रहे हैं कि हाउ डू वी रियली इनोवेट विद द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉइंग appropriate behavior science. So that's what the effort is about, and definitely sustainable agriculture, water conservation are very, very important areas that we're focusing on. So yeah. Thanks so much, Neeraj. We're very excited to see how this goes. I think what we've heard today is कुछ चीज़ें बहुत साफ निकल के आ रही हैं कि जब हम पानी की बात करते हैं, वाटर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो वी आर सीइंग पॉकेट्स ऑफ सक्सेस, राइट? I think Naseem has spoken about it, Basant has spoken about it, I think even Gopal has spoken about कि ऐसा नहीं है कि needle is not moving, ऐसा नहीं है कि improvement नहीं हो रही है। What I think the need for the hour is to collaborate, right? Manas के presentation में था that how do we engage the community, how do we converge, and how do we collaborate. What that does is it really amplifies impact in many ways.
And you know, individually as an organization, even as a government, जो पानी की problem है, that is bigger than one person, one farmer, one village. You know, the government, even the government. So private sector, social sector, communities, experts, they all need to come together, and that has been our call to arms, you know, how do we collaborate to really tackle this big challenge. So with that, I'm going to thank all our panelists for sharing their wonderful views, and you know, we have a few minutes, we can keep it open to the public, or if tea is calling, happy to close it here. Thank you, everyone. Okay. But yeah, if there are any questions, the panel can, you know, we are happy, we are here for a few minutes, we can address those. I think tea की सख्त ज़रूरत हो रही है सबको. Yeah, everyone is waiting for tea, so there is no scope for water now. I think we have enough water. So. So thank you to the panel. कई बार ये ज़रूरत होती है कि हम बातें तो करते हैं कॉन्सेप्ट की, बड़े बड़े आइडियाज़ की, पर ज़मीन पे उसे कैसे ले जाएं और कैसे पूरा जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिव बने. सिस्टम्स ऑल्सो स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कम्युनिटी. तो थैंक यू वेरी मच फॉर द पैनल. फॉर फेलिसिटेशन आई विल इनवाइट मोनिशा. यू कैन स्टार्ट विथ डॉक्टर नीरज, Dr. Gopal, Ms. Naseem, Anantika, and Mr. Basantia. Thank you very much to the panel.